Hello everyone. In the last class we were studying about the recursive descent parser. So we will continue with the recursive descent parser. I have written a grammar here and I have written some of the procedure regarding of the recursive descent parser. Okay. So this is our grammar. E gives I e des. E des gives plus I e des and the e. Okay. So this is the very first procedure we have written here, or the function for the e. E function will be called from here if L is the look ahead here. L will be the look ahead. If look ahead equals to dollar. So in the grammar or in the compiler design or the theory of automata, a string is followed by a dollar, a string followed by a dollar every time. Okay, so if look ahead equals to dollar, for example, if I write A B C D and a string, then dollar means this is the end of this string. Okay, so if L equals to dollar means we have come to the dollar और हम सबसे लास्ट में पहुंच चुके हैं स्ट्रिंग के. ओके, देन प्रिंट इफ सक्सेस, वी विल प्रिंट कि हमारी जो स्ट्रिंग थी जो हमें पास करनी थी वो स्ट्रिंग हमारी क्या हो गई है, पास हो गई है. ओके, आफ्टर दैट दिस वन वाज द बेसिक ई फंक्शन, दिस वाज वन द बेसिक ई फंक्शन. नाउ वी विल सी फॉर दिस वन, दिस इज रिटन फॉर दिस ई, दिस इज रिटन फॉर दिस ई. In this E we will see if L equals to I means look ahead equals to I. For example, मैंने string लिख रखी है I plus I E like this, ऐसा कुछ मैंने string लिख रखा है. So L equals to I means look ahead equals to I. क्या आपका जो look ahead वो है वो I के equal है? यहाँ पे first symbol is I. If अगर ये दोनों आपके मैच कर जाते हैं then match I को मैच कराना है और E को हमें क्या कराना है, यहाँ से E डैश को हमें कॉल करा लेना है. ठीक है, E डैश को कॉल करा लेना है. यहाँ पे हम E डैश के लिए फंक्शन लिख रहे हैं. सेकेंड फंक्शन इज फॉर द E डैश. व्हाट इज हैपनिंग हियर, इफ L equals to प्लस, हियर इज द फर्स्ट सिंबल इज प्लस. इफ अगर आपका लुक अहेड प्लस के इक्वल है तो आप क्या करेंगे, मैच करेंगे प्लस को. और अगला सिंबल आपका I है, दैट इज ऑल्सो अ टर्मिनल, हम I को मैच कराने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हमें क्या करना है, इस ई डैश को कॉल कर लेना, हम ई डैश को कॉल करेंगे. अदरवाइज अगर आपका ये इफ लूप में नहीं जाता है देन व्हाट विल वी डू, वी विल ट्राई टू मैच दिस ई, वी विल ट्राई टू मैच स्ट्रिंग, जो आपका स्ट्रिंग में लुक अहेड जहाँ पे आपका अभी है उसको आप मैच कराने की कोशिश करेंगे इस ई के साथ. ओके, सो दिस वन इज द फॉर दिस वन, and for this we have written the E dash procedure, or this is the basic E procedure or the E function, basic procedure this one is. And we will write a function for the match function we are writing here. What will happen in the match function, match character T, here you can take T as the token also. Okay, if L equals to T, अगर आपका look ahead टोकन के इक्वल हो रहा है, मतलब आपकी मैचिंग परफॉर्म हो रही है और आपकी मैचिंग सक्सेसफुल हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको लुक अहेड पॉइंटर को बढ़ा देना है, अदरवाइज आपको एरर शो कर देना है. ओके, अगर हमारा जो लुक अहेड पॉइंटर है जिस स्ट्रिंग के टोकन को वो पॉइंट कर रहा है, अगर वो मैच कर जाते हैं, जो टोकन आपका जनरेट होके आया है और जहाँ पे आपका लुक अहेड है, अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं दैट मीन्स कि हमारा क्या है, वो पार्टिकुलर सिंबल हमारा पास हो गया है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता इट विल शो द error. By this let's try to generate the I plus I or E. Let's try to generate this one by using all these functions. Okay, so let's try to generate I and just erasing this one. Okay, so let's try to pass a string. By this we can generate I and plus I and E. We can generate this one. So let's try to pass this string. First our pointer will be here, we will try to generate I. So E is our start symbol. From the E what will be called, we will call E first, and from the E we will just by saying this we will call I E dash, or हमारे पास E के लिए एक ही प्रोडक्शन रूल है तो E हमारा. ओके,
सो वी हैव गिवन दिस स्ट्रिंग i प्लस आई ई, ये स्ट्रिंग हमें दी है एंड एज वी नो स्ट्रिंग इज फॉलोड बाय द डॉलर. हम इस स्ट्रिंग को पास करने की कोशिश करते हैं एंड वी विल कॉल द प्रोसीजर वी हैव रिटन ऑलरेडी. सो ई इज द स्टार्ट सिंबल. उसके बाद ई से हम क्या कॉल कर सकते हैं, आई ई डैश. हम इसी प्रोसीजर को कॉल करेंगे. नाउ वी विल सी एल इक्वल्स टू आई, जो हमने इस तरीके से लिखा था. इफ एल इक्वल्स टू, जो आपका लुक अहेड है, इफ दैट इज इक्वल्स टू आई, वी विल मैच दिस आई. अगर इस आई को मैच करते हैं तो क्या ये आई और आई आपका मैच हो रहा है? डेफिनेटली दे आर मैचिंग. देन वी विल कॉल द ई डैश. ई डैश को हम कॉल करेंगे और ई डैश में ये इसको क्या सेंड कर रहे हैं, दिस इज सेंडिंग इट ट्रू. ट्रू मीन्स कि ये आपका पार्स हो गया है. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं ई डैश. ई डैश का प्रोसीजर हमने उस साइड लिखा था जिसमें लिखा था कि पहले आई प्लस को वो मैच कराने की कोशिश करेगा. अगर आपका लुक अहेड इक्वल्स टू यहाँ पे आपका था लुक अहेड इक्वल्स टू प्लस, और हमारे यहाँ पे प्लस ही जनरेट होगा एंड दिस इज आई एंड दिस इज ई डैश. ठीक है. अगर आपका लुक अहेड इक्वल्स टू प्लस है देन वी विल ट्राई टू मैच आई प्लस एंड आई. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ई डैश को हम कॉल करेंगे. ओके. अगेन ई डैश को हम कॉल करेंगे और ई डैश से हम क्या जनरेट करेंगे, पहले तो हम इसको ही जनरेट करके देखेंगे एक बार दोबारा से. ये हमेशा एज वी नो कि ये पहले रूल को उठाता है, दोबारा से ये इसी रूल को उठाएगा. इस रूल जब ये आपका मैच हो गया, इसने ट्रू सेंड कर दिया, ये आपका मैच हो गया, इसने ट्रू सेंड कर दिया. लेकिन जब ये आपका मैच नहीं, ये आपका क्या है, एक्सपेंड करना है. यहाँ से हमें जनरेट करना था ई. हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये हमारा मैच हो चुका है, ये हमारा मैच हो चुका है, हम पहुँच चुके हैं ई पे. लेकिन ई के साथ ये मैच नहीं हो रहा तो ये क्या सेंड करेगा, ये हमारा फॉल्स सेंड कर देगा. फॉल्स सेंड कर दिया. अगर आपका प्लस ही ई से मैच नहीं हो रहा है तो पूरे रूल को, पूरे प्रोसीजर को मैच कराने की नीड नहीं है. हम क्या करेंगे, इसके लिए जो दूसरा था एल्स वाला पार्ट, उसमें जाएंगे और उसमें हमारे पास क्या था, मैच कराना था ई को. ओके. और ई ही हमारा सिंबल है, लुक अहेड हमारा ई ही है. ई इक्वल्स टू ई, डेफिनेटली इट इज इक्वल्स टू एंड इट विल सेंड द ट्रू. यहाँ से हमारा ट्रू है, यहाँ से हमारा ट्रू है और ये भी हमारा आगे ट्रू. तो दिस विल गिव द ट्रू, मीन्स द योर स्ट्रिंग इज पास्ड. उसके बाद जब आपका सिंबल यहाँ पे पहुँचा और इसने मैच कराने की कोशिश करी, जो वेरी फर्स्ट प्रोसीजर ई के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था उसमें था, अगर हम देखते हैं कि आपका लुक अहेड इक्वल्स टू डॉलर आ जाता है. अगर लुक अहेड यहाँ पे फर्स्ट प्रोसीजर जो लिखा हुआ था वो कॉल होगा, लुक अहेड इक्वल्स टू डॉलर, इट विल सेंड द, it will return the success, means your string passing has been successful. Okay. So by this we can write the procedures or the functions for the recursive descent parser. These are some type of this one is the example for the recursive descent parser. We can write other options or other grammars too. For that we can generate the recursive descent parser. ठीक है. So this one was the one of the example. इसके अलावा let's try to generate the, for example we have given a left recursive grammar. We have given a left recursive grammar, for example this one, or then okay fine, here I am writing like as AB and A is given AA and A and B is given BB and B. For example, this grammar is given to us. So here we can see the recursion, left recursion we can see here, because the right hand side first symbol is equals to the left hand side symbol. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिकर्शन जनरेट हो रहा है. आपका ये रिकर्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. तो अगर मैं इसके लिए रूल लिखने की कोशिश करूँ और मैं कॉल करने की कोशिश करूँ, सो व्हाट विल हैपन, स्टार्ट सिंबल इज एस, अगेन आई एम कॉलिंग फॉर द एस, अगेन आई एम कॉलिंग फॉर द एस एंड टू अगर हमें इस s को क्या करना है, एंड करना है और टर्मिनेट करना है, तो ये फिर से क्या करेगा, ये s को कॉल करेगा. हाउ, ओके लेट्स सी फॉर दिस. अगर मैंने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया, इफ आई वांट टू जनरेट अ स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल आई वांट टू जनरेट A A B. okay, this is the string I want to generate.
So start symbol is S. S will call for the S and A and B. ये इसने क्या किया, कॉल कर लिया. अब S आपका S को कॉल कर रहा है. वट इट विल डू, इट विल अगेन कॉल फॉर द वेरी फर्स्ट रूल, इट विल कॉल फॉर द S एंड दिस S अगेन विल कॉल फॉर दिस S. मीन्स यहाँ से आपका क्या हुआ, लेफ्ट रिकर्सन की वजह से बार बार बैक ट्रैक होके आप सेम ही चीज़ में या एक लूप में आप फंसे जा रहे हैं ड्यू टू द बैक ट्रैकिंग. हमने अभी तक इस एस पे जब हम आए हैं हमने कोई सिंबल रीड नहीं किया है, ये अगेन इस एस को कॉल कर रहा है. अगेन ये फर्स्ट रूल के एस को कॉल करेगा, देन इट विल फॉर ए बी सी, अगेन इट विल सी फॉर ए बी सी, then it will go for the epsilon, then it will go for the AB. Okay, so this is how the backtracking create a problem in the parsers. Left recursion create a problem, or the backtracking is the very time taking process as we know, and left recursion creates the problem here because without reading any symbol we are again and again coming to this S procedure we are calling again and again. Okay, so this is how the problem of backtracking will happen. So firstly अगर हमें इस ग्रामर को पास कराना है, इसके थ्रू किसी भी स्ट्रिंग को हमें पास कराना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस गिवन ग्रामर से लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना पड़ेगा. ओके, एंड वी ऑलरेडी नो हाउ टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्सन फ्रॉम दैट गिवन ग्रामर. ओके, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स भी होते हैं. So this is the thing how we write the recursive descent parser. Okay, now further we will see for the predictive parsers. हम predictive parsers के बारे में देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि LL1 parser की हम बात करेंगे. Okay, so this is for today class. In the next class we will see for the predictive parser and the that one is the LL1 parser. Okay, thank you for the class.